A very warm welcome and very good morning to all of the dignitaries present over here. As we all are aware that we are gathered over here to inaugurate our first day of the international webinar. The topic of our international webinar is standing of teachers in providing a stress-free platform during COVID-19. इस संकल्पना को हमने प्राचार्य महोदय के साथ डिस्कस करके कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कैसे हम शिक्षार्थियों के लिए एक तनाव रहित वातावरण का निर्माण कर पाएं, इस मंशा के साथ हमने इस टॉपिक के बारे में सोचा और इस इंटरनेशनल वेबिनार के बारे में कल्पना की। जब हमने इस इंटरनेशनल वेबिनार के बारे में सोचा तो हमें बहुत मुख्य रूप से जो सहयोग प्राप्त हुआ वो आज के हमारे कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर राजीव चौधरी, जो हमारे विश्वविद्यालय के DSW हेड लॉ स्कूल ऑफ स्टडीज इन लॉ एवं प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन है, और वो एज अ की नोट स्पीकर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आज के हमारे इस इनॉग्रल फंक्शन के मुख्य अतिथि महोदय हमारे विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर केशरीलाल वर्मा सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस इंटरनेशनल वेबिनार को 3 दिवस तक हम चलाएंगे, आज, कल एवं 6, 7 एवं 8 तारीख। 3 दिवस के इस इंटरनेशनल वेबिनार में हमारे बीच में अलग अलग देशों से रिसोर्स पर्सन्स आएंगे और अपना वक्तव्य हमें प्रदान करेंगे। 1833 रजिस्ट्रेशंस अर्थात पंजीयन हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमने इसका प्रसारण YouTube लाइव पर करना उचित जाना और अभी पैरेलल हमारे इस सेशन का YouTube लाइव पर प्रसारण हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले इनॉग्रल फंक्शन में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर मेघेश तिवारी सर को कि वे आए एवं हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए हमारे इस इंटरनेशनल वेबिनार की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। डॉक्टर मेघेश तिवारी सर, ओवर टू यू। आवाज आ रही ना दिव्या? जी बिल्कुल सर, साफ आ रही है। दिव्या आवाज आ रही? जी एकदम साफ आ रही है सर। यस सर, क्लियर है सर। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर प्रोफेसर केएल वर्मा, senior educationist, renowned person, and Mr. Janish Sharma, chairman Wipro College Education Society, Professor Usha Dubey, our senior member, and Dr. Divya Sharma, subject experts, research scholars, and teachers. On behalf of Wipro College, I welcome all of you in our silver jubilee year of the college for inaugural function of 3 days international webinar on standing of teachers in providing a stress-free platform for learning during and post-pandemic COVID-19. I always prefer to speak in Hindi, but in silver jubilee year, I thought I should address in global language because we are going international webinar and participants from the different countries. Respected Vice Chancellor and Chairman, I would like to make you know that the number of participants from different countries of the world like Germany, Ireland, South Africa, Saudi Arabia, and other countries are 1,833. This number of participants made us great and honored in pandemic COVID 2019. Respected VC sir, I would like to also make you know that this is our first international, but we have organized 4 national webinars in this COVID period, including commerce, physical education, computer science, and yoga. In this gracious moment, I would like to thank Dr. Divya Sharma, who advised me before 10 months that we should have organized webinar. At that time, I never thought that in 4 months we will have to organize 4 national webinars. Respected VC sir, yesterday I saw a statement from General Secretary of UNO, Antonio Guterres, who stated that
In this pandemic period, 1,600 million students affected from this COVID 2019 studies, and 2.38 million students will leave the studies for economic reason. He stated that 160 countries have closed their school and colleges. In this crucial time, this is a challenge for educationist community. In this, we have decided how we can give the platform to educationists to discuss that standing of teachers in providing a stress-free platform for learning during and post-pandemic 2019. In these 3 days, Professor Rajiv Chaudhary from Ravi Shankar University, Raipur, Professor Suraj Mal Bose from Dakshin Africa, Rakesh Tomar from Saudi Arabia, Ranjin Singh Yadav, Rewari, Haryana, Michael Crow from Germany, Dr. Nitin Jaiswal Sanyal from Ireland, produce and discuss and present their views in this inaugural function of international webinar. Again, I thank to VC sir, who always appreciate and accept our request to honor us, and also thanks to our chairman who recognize and suggest to keep on doing the things on things for benefit of the college since 1996. Again, I thank to Professor Girish Kant Pandey, Registrar Pandit Ravi Shankar University, to experts. I thanks to research scholar and participants. Also, I thanks to Divya Sharma and his team. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. Divya. Thank you very much for your valuable words, sir. We will be really benefited. We'll get the benefit from your blessings. Thank you so much. To continue the series, I would like to invite, with all due respect and honor, our President of Vipra Shikshan Samiti, Shri Gyanesh Sharma sir, to bless us. मैं आदर के साथ श्री ज्ञानेश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए एवं हमें उद्बोधित करें. ओवर टू यू ज्ञानेश सर. धन्यवाद दिव्या जी. सम्मानीय रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति वर्मा जी, विप्र महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मिकेश तिवारी जी, डॉक्टर उषा दुबे जी, दिव्या जी, और वो समस्त जो पार्टिसिपेंट्स इसमें आज की इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन. जैसे कि आज हम सब जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से बुरी तरह संक्रमित हो चुका है. अन्य देशों की सहित भारत में भी यह महामारी धीरे धीरे भयावह रूप धारण करते जा रहा है. विशेष रूप से भारत का शहरी आबादी इसके आगोश में पूरी तरह समा चुका है, और दुर्भाग्य हम सबके लिए यह है कि अभी तक इसका कोई मेडिसिन, इस बीमारी का इजाद नहीं होने के चलते हम इसका सटीक इलाज नहीं कर पा रहे हैं. विश्व के अग्रिम पंक्ति के देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इस दिशा में पूरी तरह ईमानदारी के साथ जुट करके प्रयास में लगे हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन इजाद हो जाए, जिससे जो भय व्याप्त है उससे हमको छुटकारा मिल सके. और आप सब देख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपने आप को इस कोरोना महामारी से इतना असहाय महसूस कर रहा है, बेबस दिखाई पड़ रहा है. ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन बनाए रखना ही एकमात्र हम सब लोगों के लिए उपाय हो सकता है. इस विपरीत परिस्थितियों में समाज के अंदर इस बीमारी के खिलाफ सजगता अभियान बनाए रखने में शैक्षणिक संस्थानों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. देश का एक बहुत बड़ा वर्ग युवा तबके से आता है, जो सीधे शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में, उसके प्रभाव में है. यदि हम इस समाज के, देश के बहुत बड़ी बिरादरी को आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में
इनको इस सजगता अभियान से जोड़ करके यदि हम इसको कारगर हथियार के रूप में उपयोग करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम समाज के अंदर इस कोरोना बीमारी को लेकर के जो भय व्याप्त है उससे बहुत हद तक छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। आप सब लोग एक बेहतरीन विषय पर और एक प्रासंगिक समय में आप लोगों ने इस वेबिनार के माध्यम से जो इस विषय को चुना है, मुझे ऐसा लगता है यह न केवल प्रासंगिक है बल्कि इस विषय को सारगर्भित बना करके समाज और देश में व्याप्त इस कोरोना जैसे महामारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से इस संस्थान के शिक्षक गण इस युवा वर्ग को, शिक्षा विद्यार्थियों को एक हथियार के रूप में उपयोग करके इस महामारी से निजात पाने में हम एक बहुत अग्रणी एवं अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं विप्र महाविद्यालय परिवार को, विशेष रूप से प्राचार्य डॉक्टर मेघेश तिवारी को, हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या शर्मा को, डॉक्टर उषा दुबे सहित पूरे परिवार को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही विषय को चुन करके जो वेबिनार का आयोजन किया है, ये केवल एक आयोजन नहीं रहेगा बल्कि पूरे इस माध्यम से हम इस महामारी के खिलाफ लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और विश्वास व्यक्त करते हुए कि यह आयोजन, यह वेबिनार इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम आपके आशीर्वचन एवं आपके ओजपूर्ण भाषण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे प्रथम दिवस के उद्घाटन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे हमें उद्बोधित करें एवं हमें आशीर्वचन प्रदान करें। प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, ओवर टू यू सर। छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन द्वारा संचालित तथा हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय विप्र आर्ट्स, कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन के इस रजत जयंती वर्ष में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार, जिसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड-19 के दौरान एवं बाद में विद्यार्थियों के लिए तनाव रहित वातावरण के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। हमारे इस महाविद्यालय की शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी, प्राचार्य डॉक्टर मेघेश तिवारी जी, इस वेबिनार के वक्तागण प्रोफेसर राजीव चौधरी, प्रोफेसर सूरजमल ओस जो कि डीन हैं रिसर्च एंड इनोवेशन, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस, साउथ अफ्रीका। कल हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर राकेश तोमर सऊदी अरेबिया से, हरियाणा से श्री रंजीत सिंह यादव जी, और परसों 8 तारीख को जर्मनी से श्री माइकल क्रो जुड़ेंगे और आयरलैंड से डॉक्टर नितिन सान्याल जी, प्रोफेसर उषा दुबे
दिव्या जी तथा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए महाविद्यालय के सभी शिक्षक साथियों, प्रतिभागी साथियों, इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा एक प्रमुख महाविद्यालय विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर और उनके हित में क्या किया जा सकता है, कैसे प्रयास करें, विशेष रूप से कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ऐसा कार्यक्रम छात्र हित में हो रहा है। इससे सम्मिलित होते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं, चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, लेकिन हमारे विद्यार्थी जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिनको एक योग्य नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हम सब शिक्षण संस्थाओं को होती है, वे कई रूपों में प्रभावित हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका कैरियर, आगे स्वरोजगार करना, व्यापार करना, नौकरी करना या आगे रिसर्च करना और उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेकर अध्ययन करना, ये सब कुछ बाधित हो गया है, प्रभावित हो रहा है। दोनों रूपों में प्रभावित हो रहा है, तन को और मन को प्रभावित कर रहा है। शारीरिक व्याधि के रूप में हम देख रहे हैं कोरोना को, इससे कैसे बचें। बच्चों में एक उत्साह होता है, मेल मिलाप की प्रवृत्ति होती है, पर्यटन और अपने दोस्तों से निरंतर संपर्क करने की प्रवृत्ति होती है, उसमें विघ्न आ रहा है। और दूसरी तरफ मानसिक व्याधि, अवसाद उत्पन्न हो रहा है, बेचैनी हो रही है, भय उत्पन्न हो रहा है, चिंता हो रही भविष्य की, तनाव उत्पन्न हो रहा है, एक घबराहट है और अनिश्चितता, आगे क्या होगा, आज की परिस्थिति और उसके बाद भविष्य की चिंता, ये सब कुछ प्रभावित कर रहा है हमारे बच्चों को। हम अभी नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, तन और मन से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हर बार कुछ भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है तो बार बार हमारे अपने बच्चों की चिंता। हम तो ऐसे देश के नागरिक हैं जहां भारतीय परंपरा रही है शिक्षा की, ऐसी शिक्षा पद्धति रही है जिससे विद्यार्थी शिक्षक से पूरी तरह जुड़कर ज्ञान प्राप्त करता रहा है। वो एक आदर्श जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होता था
जीवन मूल्यों की उनको जानकारी होती रही और निरंतर संपर्क से शिक्षक के नया सोचना, नया विचार उत्पन्न होना, नई नई समस्याओं को कैसे हम हल करें, इसको सीखता रहा है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु उनके लिए आदर्श है, उनके जीवन से सीखता है कि हमारे शिक्षक ऐसा करते हैं, इस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाते हैं, उनके ऐसे जीवन मूल्य हैं, ये आदर्श हैं। सब कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे की आप याद कीजिए, वो अपने माँ बाप से ज्यादा शिक्षकों की बातों को तवज्जो देता है और कहता है कि हमारे शिक्षक ऐसा कहते हैं, वो आदर्श। और शिक्षक भी पूरी तरह डिवोटेड होते हैं, उन्हें तब ज्यादा खुशी होती है जब उनका विद्यार्थी उससे भी बड़े पद पर अगर चला जाता है। तो ये ऐसा काम है जिसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की। उसका मेंटर होता है, वो उसका अभिभावक होता है, हर दृष्टिकोण से उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा हर प्रकार से श्रम करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक हमेशा सोच रहा है, आज भी सोच रहा है कि कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनको सुरक्षित रहने के लिए निर्देश दें, सुझाव दें। अभी जरूरत है कि हम स्वस्थ रहें, जीवन सुरक्षित रहे और पढ़ना पढ़ाना कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, जो साधन उपलब्ध होंगे उसके माध्यम से कर सकते हैं। मुख्य रूप से धैर्य की ये परीक्षा है, हमारे संयम की परीक्षा ली जा रही है, ये समझ लीजिए। और अपने विवेक को कैसे हम संभाल के रखें, उससे उसका सदुपयोग करके हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकें और खासकर इन परिस्थितियों से कैसे जूझ कर हम आगे बढ़ें। बड़े बड़े संकट आए हैं, उस सब का निदान हुआ है, लेकिन जो उन संकट के बीच में अपने को अनियंत्रित कर लेते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना होगा, ये कुछ काल विशेष की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, हम इससे जूझेंगे। मानव बड़े बड़े संघर्षों से जूझ कर आगे बढ़ा है और सीखा है जीवन जीना। इस कोरोना ने भी हमें सिखाया है बहुत कुछ, कैसे सादगी से जीवन जीना, कैसे अपने अलावा दूसरों को भी चिंता करना, कैसे प्रकृति की चिंता करना और सबकी भलाई में अपनी भलाई है। सबके स्वस्थ रहने से अपना स्वस्थ रहना निश्चित होता है। इस बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ने पढ़ाने में भी सिखाया है कि कैसे हम केवल पुस्तकों के आधार पर ही नहीं, ऑनलाइन बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उसका हम सदुपयोग करें। पहले कर रहे थे सदुपयोग, लेकिन उतने लोग नहीं, उतने लोग प्रेरित नहीं होते। बहुत सारी जानकारियां हैं, MHRD ने, UGC ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, सुविधाएं दी, स्वयं बना हुआ है, स्वयं प्रभा बना हुआ है, ई-पाठशाला की सुविधा है, लेकिन विद्यार्थी उसका सदुपयोग नहीं कर रहे थे। आज हमारी जरूरत बन गई, हम उसी रास्ते में चल रहे हैं
और शिक्षक हमारे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को डिजिटल माध्यम से नवाचारी उपयोगों में खुद को दक्ष बनाना होगा। जब शिक्षक हमारे दक्ष होंगे, उसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। वे जाने, वे देखें कि पाठशाला में क्या कंटेंट्स हैं, वे देखें कि स्वयं प्रभा में कितनी जानकारियां हैं। हम इसीलिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मूक्स की वर्कशॉप हम कराना चाह रहे हैं। अब पिछले दिनों भी कराया है, ताकि हमारे शिक्षक आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो जाएं और जो बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो तनाव है, उसको इस तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। उनको पढ़ें, पढ़ाएं, उनको ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ें ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके मन में अवसाद उत्पन्न हो रहा है, उससे उनको मुक्ति मिले। उन्हें बताएं कि योग कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप प्राणायाम के माध्यम से कैसे अपने मन मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से कैसे आप प्रसन्नचित्त रहने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमारे बच्चों को बताना होगा, हमारे शिक्षक ही बताएंगे, वो मार्गदर्शक हैं। वो शिक्षा के माध्यम से और सबसे ज्यादा जुड़ाव विद्यार्थियों का अपने शिक्षक से स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक का जीवन, उसकी जीवन शैली, उसके जीवन मूल्य, उनके आदर्श हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उससे वो सीखता है, अनुकरणीय होता है। इसलिए इस तनाव, अनिश्चितता वातावरण से दूर करने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। दोनों दृष्टिकोण से बच्चों को तन और मन से स्वस्थ रखना होगा। और ये जो प्रक्रिया होगी वह पूरे जीवन के लिए उपयोगी होगी। कोरोना काल के इस काल के दौरान भी और उसके बाद भी तनाव रहित वातावरण में बच्चों को ले जाना, ऐसा वातावरण क्रिएट करना होगा जिससे कि वे इससे मुक्त रहें। और अगर इन दिनों वो इस प्रकार से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, तो स्वाभाविक है वो जीवन भर उसका काम आएगा। इसलिए हम लोग अभी ऑनलाइन टीचिंग और बच्चों को ऐसे सेमिनार में सम्मिलित करके उन्हें उचित मार्गदर्शन देने का उपक्रम कर रहे हैं। और ऐसा कोई महाविद्यालय करता है। और विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि 1800 से ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स इससे जुड़े हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। हमारे अभी विद्वान वक्तागण अपने विचार रखेंगे और वो विचार हमारे विद्यार्थियों को तनाव रहित वातावरण निर्माण करने उनके लिए लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा अगर अपने विद्यार्थियों के लिए करते हैं, वह एक सराहनीय कार्य होगा संस्था। अभी मैं और बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे वक्तागण अपने विचार रखेंगे। मैं शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर मेघेश तिवारी, महाविद्यालय की पूरी टीम को मैं इस कार्यक्रम करने के लिए जो उन्होंने उद्यम किए उसके लिए, और इतने विद्वान वक्ताओं को जोड़ा इस
कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने कार्यक्रम रखा है वह सफल हो और उसकी सफलता हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा, मंगलकारी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। हम आपके इस सहज भाव से अभिभूत रहते हैं और हमेशा रहेंगे कि हमें जब भी मार्गदर्शन एवं जब भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है बहुत ही सहज भाव से आप हमसे जुड़ते हैं। इसके लिए पूरे विप्र महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।